Hello students, today I am going to start new chapter number 7, Business Finance. Firstly meaning, business finance refers to capital funds and credit funds invested in the business. Students, debt finance which is invested in the business is known as आपका business finance, but these are collected through the आपका two sources that is owners funds and borrowed funds. Owners funds, debt fund which are arranging by the itself by the कह लीजिएगा sources of owners. Debt fund is known as आपका owners fund and borrowed fund which are taken from the आपका अदर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या आपका टेकिंग लोन्स एक्सेट्रा. तो डेट फंड इज नोन एज बोरोविंग फंड्स. बिजनेस फाइनेंस may be defined as planning, raising, managing and controlling all the money used or capital funds of any kind used in connection with business. फाइनेंस इज़ ए मेजर फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस. स्टूडेंट, जो फाइनेंस है वो बहुत ही एक बिग फंक्शंस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का. इट डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल. इसी के थ्रू यानी कि फाइनेंस से ही हम डीलिंग करते हैं जो हमारा प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, है ना. जो ऑब्जेक्टिव्स है एंटरप्राइज का उसको अचीव करने के लिए हम उसी जो हमारा फाइनेंस है, जो हमारा फंड्स है, उसी को हम अरेंजमेंट करते हैं. सेकंड इज नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. फर्स्टली, no one can start a business or run an enterprise without adequate funds. Students, this is clear and simple things कि without funds, without money, no one can start your business and no one can run your आपका enterprises. Every business requires some money to start, which is called initial capital. To start business, you have need आपका some money and that money is called initial capital. The amount of capital required depends upon the nature and size of the business. Students, raise a questions कि how much fund you have need. आपको कितना पैसा चाहिए to start your business. तो student, the answer is कि the amount of capital is depends on the nature and size of the business. Means if you are want to start your manufacturing business, then you have need to a lot of funds, more funds. On the other hand, if you want to start your आपका trading business, then you have required आपका less amount of capital, because in trading business you have not required to purchase the आपका fixed asset. It's clear? Business enterprise requires capital and finance for the following purpose. First is, while starting a business, finance is required to procure or purchase fixed assets and also for meeting day-to-day expenses. स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है. तो दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स कि वाइल स्टार्टिंग ए बिजनेस, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव नीड द फंड्स टू परचेज द फिक्स्ड एसेट एंड आल्सो रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस. जो आपके डेली के एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस में, उनको फुलफिल करने के लिए यू हैव नीड द आपका फंड्स और मनी. सेकेंड इज़ टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंथी. अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथी है आपके बिजनेस में, देन यू हैव रिक्वायर्ड टू आपका वर्किंग कैपिटल, सो यू हैव नीड आपका मनी और फंड्स टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी. टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स कैपिटल. यानी कि यदि आप अपने एक्टिविटीज़ को ग्रोथ करना चाहते हैं बिजनेस की, या बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, देन यू हैव नीड आपका फिक्स्ड कैपिटल. तब आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी.
एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू ए बिजनेस कंसर्न, ए बिजनेस एंटरप्राइज। जो प्रॉपर फंड्स है वो बिजनेस एंटरप्राइज को वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, जस्ट लाइक ए फर्स्ट, द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटी ऑन टाइम। Students, if you have enough funds, if you have sufficient fund in the business, then you can pay your liabilities on time. Secondly, the firm can carry on its business smoothly. If business have sufficient funds, then the business running all the activities of business is smoothly. Third, the firm can adopt latest technology and new innovation methods of production. Students, if फर्म्स के पास प्रॉपर फंड्स है, प्रॉपर मनी है, प्रॉपर फंड्स है, देन ही कैन परचेज द आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूज़ द आपका न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द आपका गुड्स। नेक्स्ट इज द फर्म कैन मेक यूज़ ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। फर्म जो है, जो बिजनेस जो है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकता है, उनको मेकिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज द फर्म कैन फेस कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। As you know students, कि in the market there are a large scale of competition is created because a large number of competitors are available in the market. So if you have sufficient funds, then you can face the competition strongly and easily. Next is the firm can replace its assets and machinery whenever necessary. Yes. Students, if you have enough funds, if you have enough money, then if you feel that your machineries or your fixed assets is become old, then you can change it and replace it with the आपका new asset. Next is the firm can face recession and depression period of the trade cycle. Means if you have enough funds, you have enough money, then you can face the problem of depression. Means when the आपका your आपका कह लीजिएगा पीरियड इज़ नॉट इन गुड, यानी कि यू हैव नॉट अर्निंग सफिशेंट प्रॉफिट। इट्स क्लियर। तो इन कंक्लूजन कि बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स फाइनेंस एट एवरी स्टेज। हम कंक्लूड में ये कह सकते हैं बेटा कि बिजनेस फर्म को एवरी स्टेज पर, एवरी स्टेप्स पर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट मस्ट बी अवेलेबल इन एन एडुकेट अमाउंट एट द राइट टाइम। मतलब सही समय पर प्रॉपर फंड्स का, प्रॉपर मनी का होना बहुत ज़रूरी है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रनिंग करने के लिए। इन शॉर्ट वी कैन से डैट कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। जो फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड है बिजनेस का। नाउ sources of finance on the basis of ownership. So there are two sources of finance. These are owners fund and borrowed funds. First is owners fund. Owners fund refers to the funds contributed by owners as well as the accumulated profit of the company. Students, owners funds का meaning कि डेट फंड विच आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जो पिछले सालों का बचा हुआ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, और जो ऑनर्स का अपना कैपिटल है, अपनी पूंजी है, ठीक है, जो उसने कंट्रीब्यूट किया इन द बिजनेस, तो डेट फंड इज नोन एज ऑनर्स फंड। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी। ये फंड्स कंपनी में रहता है एंड इट हैज़ नो लाइबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड, और इस फंड्स को रिटर्न करने की कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, these are the sources of owners fund: equity shares, retained earnings, etc. Now main features of owners funds. First features कि source of permanent capital. Student, जो owners funds है वो permanent source of capital है। The owners fund remains permanently invested in the आपका business, यानी कि जो owners fund ने, owners के funds के through जो owners ने अपना contribute किया है capital in the business, it remains in the business throughout the life of the business. It is not refundable like loan or borrowed fund, यानी कि इसको वापस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि जिस तरह से आपने अगर कोई पैसा उधार लिया है, बोरोड फंड लिया है, उसको रीपेड करना होता है, बट ऑनर्स फंड्स को नो नीड।
ए लार्ज पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड इज़ यूज फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट। जो ऑनर्स फंड्स होता है उसका मैक्सिमाइज पार्ट यानी कि लार्ज पार्ट जो है वो परचेजिंग करने में यूज़ कर दिया जाता है फॉर द फिक्स्ड एसेट्स के लिए। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस, यानी कि इस टाइप के फाइनेंस को जो अवेलेबल होता है वो आपका थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बिजनेस में रिक्वायरमेंट होता है। सेकेंड इज प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ रिस्क कैपिटल, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। द ऑनर्स फंड इज ऑल्सो नोन एज द रिस्क कैपिटल या रिस्की कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो ऑनर्स फंड्स है वो बिजनेस का रिस्की कैपिटल कहलाता है, बिकॉज द रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो इस फंड्स का रिटर्निंग है वो डिपेंड्स करता है आपका रेट ऑफ अर्निंग्स पर, रेट ऑफ अर्निंग्स पर। इन केस कंपनी इज इंक्यूरिंग लॉस, अगर कंपनी लॉस में सफरिंग कर रही है, देन इट इज़ नॉट कंपलसरी टू पे एनी रिटर्न ऑन द ऑनर्स फंड। तब ऑनर्स फंड्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि किसी भी कंडीशन में ऑनर्स फंड्स को हम रिटर्न नहीं करेंगे। इफ़ लॉस कंटिन्यूज, ऑनर्स में बी अनेबल टू रिकवर इवन देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन ऑन द ऑनर्स फंड। अगर हमारे पास अच्छा पीरियड चल रहा है, हम एनफ अर्निंग कर रहे हैं, तो एक हाई रेट ऑफ रिटर्न हम ऑनर्स फंड्स को दे सकते हैं, यानी कि जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स हैं उनको एक हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करा सकते हैं। द रिटर्न ऑन ऑनर्स फंड वरीज विद द प्रॉफिट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो आपका रिटर्न ऑफ ऑनर्स फंड्स है ये डिफर हो सकता है विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग से। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिस्की कैपिटल। नेक्स्ट इज नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। नो सिक्योरिटी हैज़ टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ऑनरशिप कैपिटल, यानी कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड या कंट्रीब्यूटेड आपका ऑनर्स फंड इन द आपका बिजनेस, देन यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, एनी आपका कह लीजिएगा टाइप ऑफ गारंटी, ठीक है, ऑन दैट फंड्स। फोर्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड। द ऑनर्स फंड्स comprises of shares capital, retained earnings, etc. So these are the sources of owners fund.